So brief about our esteemed guest. He belongs to Morena and he entered into police services through state police services, if I'm not wrong. Yes. And since then he has held varied of appointments, position all across Madhya Pradesh, starting with city SP and then Indore, Gwalior, Jabalpur. He's been in assistant IG also. Presently he is appointed, and most of the time majority of his tenure he is spent in Indore, and presently he is the Deputy Additional Commissioner of Crime Branch posted in Indore. We are very honored today that he has accepted our request to educate you all, because you are the generation who needs to be educated properly about cyber crime. शब्द सबने सुना होगा what exactly is cyber crime. You all know, but this is all again a Google based knowledge you've got, okay? So which is not sufficient for you all, because you are the most influential, targeted community, our youth. That is where it spreads, and it goes on and on and on and on. So for you should be a very, very careful what exactly is you are supposed to do as far as the cyber crime is concerned. What exactly is cyber crime? So he has accepted our request to brief you all. Due to the the limitation of our classroom, we have more than 400 plus students presently, but we have a limitation of the classroom, and this is the biggest we can offer to sir. So I will request now Chairman Mr. Rahul Pandey to welcome Mr. Rajesh sir with the bouquet. So now I'll, without wasting much of your time, I'll hand over the podium to the additional Deputy Commissioner, sir. And one announcement: please do not make any videos. You can take pictures. He looks so handsome and smart in his dress. I, being from the armed forces background, 25 years in the Navy, I love my uniform and I miss my white uniform. Please, sir. Thank you very much. Thank you very much, sir. Good afternoon to all of you. Good afternoon, sir. Science and technology have given us great ease and comfort in our day-to-day living, but this comfort has also given to the criminals for carrying out their nefarious activities. आप में से कितने लोगों के साथ साइबर फ्रॉड हुआ है? तुम्हारे साथ हुआ है? क्या हुआ इंसिडेंस? ओके। और वो आईडी वो बंद नहीं कर रहा। अभी भी कर रहा है? हाँ, करंटली अभी मैंने पुलिस कंप्लेंट की है, एफआईआर भी किया है, बट अभी उस पर एक्शन नहीं हुआ। कौन से थाने में एफआईआर की है? भगरपुर आप एफआईआर की है। ओके। कब कंप्लेंट की है? 8 to 10 डेज हो गए होंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट। सर टेलीग्राम पे एक मेल आया था वर्क फ्रॉम होम का, उसमें वो लोग मर्चेंट टास्क देते हैं। तो पहले सर मैंने उसमें 15,000 रुपीज़ लगाए थे, तो उन्होंने मेरे को रिटर्न में 30 दे दिए। फिर धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते सर उनके टास्क मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपांड होने लगे। इतना भरना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको एक टास्क आपका कंप्लीट होगा। कितने से निपट गए? 68,000। हार्ड लक दिस टाइम, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। मैं केस स्टडी बताऊंगा आपको। मैं एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच हूँ। इससे पहले मैं 8 महीने पहले मैं एडिशनल एसपी क्राइम ब्रांच ग्वालियर था। क्राइम ब्रांच में बेसिकली साइबर क्राइम एक विंग होती है। तो क्राइम ब्रांच एडिशनल एसपी जब ग्वालियर था 15 to 20 कंप्लेंट्स पर डे आती थी। तो फिर मैंने अवेयरनेस कैंपेन चलाया, तो 2, 3, 4 का डिफरेंस आया, मतलब लगभग 12 से 13 रह गई। फिर यहाँ इंदौर क्राइम ब्रांच ज्वाइन किया, तो यहाँ तो 40 to 45 कंप्लेंट्स पर डे आ रही हैं। तो ये मेरा 217 सेशन है आज जो आप लोगों के बीच हूँ। और इसमें 3 वेज हम काम कर रहे हैं क्राइम ब्रांच। नंबर 1 इज़ टू क्रिएट अवेयरनेस कि किस तरीके से लोगों को एक डिजिटल कॉप के रूप में डेवलप किया जाए। अगर आज आप लोग इस बारे में समझेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अपनी फैमिली में, अपनी टाउनशिप में या कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड्स के साथ इसको डिस्कस करेंगे। 1
सेकंड हम फिर कोशिश कर रहे हैं कि विक्टिम्स का जो पैसा जाता है उसको पैसे को दिलवाया जाए। तो पैसे के लिए हम कोशिश करते हैं विक्टिम्स के, तो वो पैसा भी हम कोशिश करते हैं कि उनको वापस दिलवाया जाए। तो सेकंड पे है। और थर्ड ये है कि हम गेम्स को पकड़ते हैं। वो सबसे अच्छी बात यह है कि आज अपन डिस्कस करेंगे केस स्टडीज बताऊंगा मैं आपको कोई डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप कोई स्टूडेंट्स हैं नहीं उनको कोई एग्जाम देना हो। आपको सिर्फ ये है कि जो एटम बम है, टाइम बम है, जो वो अपने हाथ में है, वो अपने हाथ में विस्फोट ना हो जाए, ब्लास्ट ना हो जाए, अपनी लाइफ ब्लास्ट ना हो जाए। क्योंकि साइबर क्राइम में कुछ हज़ार रुपए से लेकर आपकी जान भी जा सकती है, आपकी लाइफ का भी वो रिस्क रहता है। तो ऐसे केस बताऊंगा मैं आपको, केस स्टडी जिनमें किस किस तरीके से क्राइम होता है और किस तरह से आपको सतर्क रहना है। और कंप्लेंट अगर अपन को करनी है तो कहाँ करनी है। जैसे उसके साथ साइबर क्राइम हुआ, लेकिन क्या हुआ, उसने कंप्लेंट कहाँ की, प्रॉपर प्लेटफॉर्म पर अगर करती, संभवतः अभी काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हुए तो मैं बताऊंगा कैसे। और किसी से साइबर क्राइम नहीं हुआ, पक्का पक्का, ठीक है।